नेक्स्ट पोएम कौन सी है हमारी? आवर नेक्स्ट पोएम इज शाबाश व्हेन यू our next poem is when you are old. When you are old. And this poem is composed by William Butler Yeats. William Butler Yeats. This poem is composed by William Butler Yeats. Now, just take a look at the title. आप इस टाइटल पे नजर मारिए ना एक बार, आपको क्या लगता है हमें? While looking at this title, what do you think? यहाँ पे इस टाइटल से ही हमें पता चलता है कि one person is speaking to another. One person is speaking to another. When you are old, it seems to be the speech of a first person. ये किसकी स्पीच लगती है? यानी कि जो पहला पर्सन है ना, वो किसी दूसरे से बात कर रहा है, वो किसी दूसरे से और वो उसे कह क्या रहा है? When you are old. When you are, what does it mean? एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है कि when you are old. When you are old. Just take an example of me. मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे आप लोगों से बता रहा हूं कि when you are old. When you are old. क्या ये काफी है या आगे भी मुझे कुछ बताना है? क्या इतना काफी कहना है कि when you are old? आप समझ गए ना? इतना ही कहने से आप समझ जाते हो मेरा मतलब? When you are old, जब आप बूढ़े हो जाओगे. Is it a complete sentence or an incomplete sentence? Incomplete. Is there a complete information or is there something missing? There is something missing. There is something missing. When you are old, तो आगे मुझे बताना है कि फिर हो क्या जाएगा? What will happen when you are old? What will happen when you are old? So ये जो missing part है ना इसका, the missing portion of the title, that will be clear in the poem. वो हम clear किसमें कर लेंगे? समझ आई बात? Now, who is the speaker in this poem? The poet himself, W.B. Yeats or William Butler Yeats. Who is the speaker in this poem? Speaker कौन है? शाबाश, स्पीकर कौन इस पोएम में? विलियम बुटलर रीड्स, द पोएट हिमसेल्फ. The poet himself happens to be the speaker of this poem. Happens to be the speaker of this. Now the second question is, to whom he is speaking? To whom he is? इसका मतलब क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? वो किसको बोल रहा है when you are old? वो किसको बोल रहा है when you are old? Actually, he is speaking to his beloved. He is speaking to his Madbone. And the name of his beloved was Madbone. Actually, when William Butler Yeats, he was a very fantastic poet, and he was rather a fashionable person. Fashionable समझते हो ना आप? जो इन दिनों का ट्रेंड्स वगैरह था उनको अच्छे से फॉलो करता था. So, while in a university, while in a university, he got a chance. उसे एक मौका मिला ना, एक aristocratic family. Aristocratic family समझते हो आप? What's an aristocratic family? What's an aristocracy? Aristocracy is a kind of government. Aristocracy is a kind of. Just take an example of a democracy. What's a democracy? Where the people get a chance to elect their own representatives. That is a democracy. And simply you say monarchy. What's a monarchy? A kind of government where all the power, जो भी powers हैं government के, they are vested in a single person. वो किसके हाथ में होती है? एक ही person के हाथ में होती है. That is monarchy. That is. And the second form of government is aristocracy. Second form of government is aristocracy. Aristocracy means a kind of government where the whole power is vested within a few hands. इसका मतलब क्या है? जहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में ना ताकत होती है. समझ आई बात? That is called an aristocracy. That is called as an aristocracy. तो when he was at university, कौन? William Butler Yeats. He got a chance. उसे एक मौका मिला. एक जो एक मैडबोनी थी ना, मैडबोनी. She belonged to an aristocratic family. वो किससे ताल्लुक रखती थी? किससे ताल्लुक रखती थी वो? Aristocratic family से. किससे ताल्लुक रखती थी वो? जिनके पास पावर था, रूलिंग फैमिली से वो ताल्लुक रखती थी. समझ आई बात? किससे ताल्लुक रखती थी? ये रूलिंग फैमिली से ताल्लुक रखती थी. एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से वो ताल्लुक रखती थी. समझ आई बात? That means जो उसका क्लास था ना, that was higher than विलियम बुटलर रीड्स. उसका जो क्लास था ना, जो उसका सोसाइटल क्लास था, वो बहुत ही ऊंचा था. किससे? विलियम बुटलर रीड्स से. समझाई बात? बट विलियम बुटलर रीड्स falls in love with Madbone. Falls in love with Madbone. वो बहुत प्यार करता था किसके साथ? Madbone के साथ.
Although he proposed many times to Madgoni, उसने बहुत बार प्रपोज किया था किसको? मैडगोनी को. But unfortunately, जो मैडगोनी थी ना, she didn't respond to his love. उसने उसके लव का रेस्पॉन्ड नहीं किया. That means she did not accept it. उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया. समझ आई बात? So in this इस की वजह से बिकॉज ऑफ ये जो विलियम बुकर रीड्स था ना, ये बहुत ही परेशान रहता था. इसका जो मूड था वो सोलम बन गया, सीरियस बन गया. ठीक है ना? एंड ऑल द थिंग्स हैपेंड विद हिम. दूसरी बात, जो मैडगोनी थी ना, मैडगोनी शी वाज वेरी इन हर यंग एज शी वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रेटी. मैडगोनी क्या थी? शाबाश, ये बहुत ही खूबसूरत थी. एंड उसको थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा था. किस बात को लेकर? शाबाश, अपने ब्यूटी को लेके उसको थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा था. समझ आई बात? तो मैडगोनी वाज फीलिंग प्राउड ऑफ हरसेल्फ. मैडगोनी वाज फीलिंग प्राउड ऑफ हरसेल्फ बिकॉज ऑफ टू रीजंस. एंड व्हाट वर दे? नंबर वन, शी बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, व्हिच इज जो जिससे वो क्या फील कर रही थी? प्राइड फील कर रही थी. एंड नंबर टू, she was a beautiful and pretty lady. That is why she was feeling proud of herself. And because of it, she could not respond to the love of William Butler Yeats. समझे ना बात? तो इस वजह से क्या हुआ? विलियम बुटलर ईट्स था, वो अफेक्ट हो गया इस बात को लेकर. अफेक्ट समझते हो ना आप? अफेक्ट हो गया इस बात को लेकर. ठीक है ना? एंड लेटर ऑन उसने एक बुक का पोइम्स लिखी. किसके लिए? मार्गोनी के लिए उसने बुक का पोइम्स लिखी. उसमें बहुत सारी चीजें उसने मेंशन की है. एंड व्हेन यू आर ओल्ड इज वन अमंग देम. जो उस बुक में उसने पोइम्स लिखे हैं ना, जो उसने किसको एड्रेस किए हैं? मार्गोनी. तो ये जो व्हेन यू आर ओल्ड है ना, दिस पोइम इज वन अमंग देम. ये पोइम भी उनकी पोइम्स में से एक है. वो समझ आई बात आपको? नाउ who is you in this poem, in this title? Who is you? You refers to Margoni. And in this poem, William Butler Yeats जो है ना, विलियम बुटलर ईट्स कह रहा है. किसे कह रहा है? मैडगोनी से. कह क्या रहा है? When you are old, आगे कुछ बातें होगी ना, तो आगे वो इसे बहुत सारी बातें सुना रहा है कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी, देन जिन चीजों पे आप प्राउड फील कर रहे हो, जिन चीजों पे आप, फॉर एग्जाम्पल, यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर ब्यूटी, यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर ब्यूटी, यानी कि आप अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ही प्राउड फील कर रहे हो. बट व्हेन यू आर ओल्ड, ये आपकी जो ब्यूटी है ना, ये खत्म हो जाएगी. इट विल कम टू एन एंड. तो उस वक्त आपको प्राउड करने की जो एक वजह थी ना, ये खत्म हो जाएगी. और दूसरी बात, बहुत सारे एडमायरर्स हैं आपके. एडमायरर का मतलब क्या है? तारीफें करने वाले. क्या होते हैं एडमायरर? तो इन हर यूथ में जो मैडगोनी थी ना, देयर वर सो मेनी पीपल हु एडमायर्ड हर ब्यूटी. जो किसको एडमायर करते थे? जो उसकी ब्यूटी को एडमायर करते थे. लेकिन कब? When she was in her youth. But when you are old, उसको विलियम बुटलर ईट्स से कह रहा है कि when you are old, ये एडमायरर्स भी कहां चले जाएंगे? ये भी भाग जाएंगे. क्योंकि nobody to admire, to praise your beauty. कोई आदमी ही नहीं होगा जो किसकी तारीफें करे? जो आपकी ब्यूटी की तारीफें करे, जो आपकी खूबसूरती की तारीफें करे. Why? Because your beauty will be no, उसको होगी ही नहीं, तो तारीफें करने वाले भी वहां पे नहीं रुकेंगे. समझे ना बात? या दूसरी बात, मैडगोनी को वो ये भी कह रहा है कि when you will be caught in any kind of a dilemma, यानी कि जब आप किसी उलझन में फंस जाओगी ना, या जब आप किसी परेशानी में फंस जाओगी, तो जो आपका फेस है ना, ये चेंज हो जाएगा. चेंज का मतलब क्या है? यानी कि बिकॉज ऑफ सीरियसनेस, यानी कि जब इंसान किसी उलझन में फंस जाता है ना, तो उसके जो चेहरे का रंग है ना, वो फीका पड़ जाता है. क्या पड़ जाता है? फीका. समझे ना बात? उस वक्त भी कोई उस आदमी के सामने नहीं आता है. बट विलियम बुटलर ईट्स एश्योर्स हर, वो उसको यकीन दिलाता है कि ओल्ड एज में भी एक ही आदमी होगा जो उस वक्त भी आपसे उतना ही प्यार करता होगा जितना कि जवानी में लोग करते थे. और वो आदमी कौन होगा? That will be William Butler Yeats. And there will be only one person who will come to your help, even in your toughest times. And the person will be, कौन होगा? That will be William Butler Yeats.
समझे ना बात? तो ये व्हेन यू आर ओल्ड, जो आगे की बातें हैं ना, जो आगे की बातें हैं वो किस में लिखी गई है? वो तो इस पोएम में लिखी गई है, समझे ना बात? सो हु इज एड्रेसिंग टू मैडगोनी इन दिस पोएम? कि कौन एड्रेस कर रहा है मैडगोनी को इस पोएम में? विलियम बुटलर यीट्स, विलियम बुटलर यीट्स, समझे ना बात? एंड इस पोएम में सिंपली हम एक चीज निकाल सकते हैं, ये जो टाइम है ना, टाइम, जो टाइम का डिस्ट्रक्टिव मूड है, जो टाइम का कौन सा मूड है, वो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव मूड। टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? टाइम हर किसी चीज को तबाह कर देती है, समझ आई ना बात? किस तरह? व्हाई? हाउ? शाबाश। जो मैडगोनी के साथ हो जाएगा, इन प्राइम यूथ, उसके पास क्या थी? ब्यूटी थी, चार्म था, बाकी बाकी चीजें, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ, ये सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं, दे कम टू एन एंड, दे कम टू एन एंड। सो जो टाइम है ना, टाइम क्या है ये? व्हाट? शाबाश, टाइम है क्या? ये डिस्ट्रॉय करता है हर किसी चीज को वक्त गुजरने के साथ साथ, समझाए ना बात? तो यही चीजें विलियम बुटलर यीट्स किसको समझा रहा है? मैडगोनी को। और कह क्या रहा है? व्हेन यू आर ओल्ड, व्हेन यू आर, तो फिर ओल्ड एज में क्या क्या हो जाएगा वो बातें इसको वो सुना रहा है, किसमें? इस पोएम में। जैसे कि पहली ही लाइन है, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, नॉटिंग बाय द, वही है, नॉटिंग बाय द फायर, टेक डाउन दिस बुक। ये दो लाइन क्लियर कर लो आप। व्हेन यू आर, क्या कह रहा है उसे? व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड full of sleep. शाबाश, try to dig out the meaning of this lesson. When you are old, जब आप क्या हो जाओगी? बूढ़ी हो जाओगी, ग्रे हो जाओगी। ग्रे का मतलब क्या है? बाल वगैरह सब सफेद हो जाएंगे। That means इस ग्रे की मीनिंग है when you will lose all your charm and beauty. जब आपकी जो खूबसूरती है ना, जो आपकी ब्यूटी है, जो आपकी यूथ में थी, जो आपकी जवानी में थी, then वो क्या, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एंड फुल ऑफ स्लीप, और क्या हो जाओगी? फुल ऑफ स्लीप। फुल ऑफ स्लीप मीन्स, शाबाश, फीलिंग स्लीपी, फीलिंग because of many reasons, because of exhaustion, because of tiredness, because of sickness, कोई भी वजह हो सकती है, समझाए ना बात? सो क्या कह रहा है मैडगोनी को? व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप क्या हो जाओगी? बूढ़ी, ग्रे, फुल ऑफ स्लीप। नाउ इफ यू चेंज द पोएटिक नेचर ऑफ दिस लाइन, अगर इस लाइन का पोएटिक नेचर आप चेंज कर लोगे तो आप सिंपल इंग्लिश में क्या लिख सकते हो इसे? शाबाश, द पोएट विलियम बुटलर यीट्स आस्क, किसको कह रहा है वो? बट सेज टू मैडगोनी दैट when she will be in her old age, when she will be in her old age, when you will be, when she will be in her old age, she will lose all her beauty and charm, the beauty and charm which was praised by everyone, which was admired by everyone and liked by everyone. And when she will lose all the activity of her life, वही है ना feeling sleepy, to lose all the activities of the life, जो चहल पहल होती है ना जिंदगी में, जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो one feels sleepy, one feels sleepy. So एनर्जी है ना वो बिल्कुल कम हो जाती है। आप समझिए, when you feel yourself less energetic, समझे ना भाई? क्लियर हो गया ना ये? एंड नॉटिंग बाय द फायर, और अब नॉट करती होगी। दूसरी लाइन क्या है? एंड नॉटिंग बाय द फायर। नॉट मीन्स मूव योर हेड अप एंड डाउन। क्या होता है नॉट? जब नींद आती है ना तो क्या हो जाता है? ऐसे ना नींद, वी मूव आवर हेड अप एंड डाउन, ठीक है ना? ये भी इमेजिनरी है। तो आप क्या कर रही होगी उस वक्त? उस बुढ़ापे में आप क्या कर लोगी? नॉटिंग बाय द फायर, आप आग जली होगी, आग के एक तरफ बैठी हुई होगी, नॉटिंग बाय द फायर, ठीक है ना? टेक डाउन दिस बुक। उस वक्त आप क्या कर लेना? The poet suggests her that you should take down my book. What kind of book it is? What kind of book it is? It is the book of poems which William Butler Yeats had written for Margaret. William Butler Yeats had written for Margaret. यहाँ तक क्लियर हो गया ना? Take down this book. तो उसको क्या सजेस्ट कर रहा है? शाबाश, उस वक्त आप ये किताब ले लेना, ये किताब पढ़ लेना। आप कौन सी किताब? शाबाश, जो विलियम बुटलर यीट्स ने उसके लिए लिखी है। ये दोनों लाइन्स क्लियर हो गए ना? एंड इफ यू लुक एट these two lines are full of imageries. These two lines are full of, ये दोनों के दोनों लाइन्स imageries है। Why? Because feeling old, grey, full of sleep, nodding by the fire, ये सब क्या है? These are all imageries. These are all imageries. समझोगे ना बात? तो क्या कह रहा है विलियम बुटलर यीट्स मैडगोनी को? शाबाश,
Shabash, when you will be old, you will lose all the charm and beauty and all the admirers, the praisers who praise your beauty, etc. ठीक है ना? तो उस वक्त आप क्या कर लोगे? You should take down this book. You should go through my book. आप ये जो मेरी बुक मैंने आपके लिए लिखी है ना, आप इस बुक को उस वक्त पढ़ लेना. आप इस बुक को उस वक्त पढ़ लेना. And slowly read. And dream of the soft look which your eyes once had, and their shadows deep, and their shadows deep. ठीक है ना? And of their shadows deep. तो उस वक्त उसे कह रहा है, and take down this book and look and dream. आप फिर आप उस वक्त देख लीजिए और सोच लीजिए. ड्रीम का मतलब क्या है? सोचना. उस वक्त आप ये बुक पढ़ के आप देख लेना और आप समझ लेना, आप सोच लेना. किसके मुताबिक? आपका सॉफ्ट लुक. आपकी बात सॉफ्ट लुक मीन्स सॉफ्ट लुक. इसकी मीनिंग निकालो ना आप. ये पोएटिक एक्सप्रेशन है. खुद ही मीनिंग निकालो ना इसकी. शाबाश. Try to dig out the meaning of it. यानी कि फिर आप सोच लेना. फिर आप किसके मुताबिक जो आपका सॉफ्ट लुक था. ये कब था उसका सॉफ्ट लुक? तो जवानी में उसका लुक कैसा था? तो सॉफ्ट लुक सिंपली मीन्स शाबाश a fair appearance. A fair वो क्या होता है? fair appearance. A good look. जो खूबसूरती थी. ठीक है ना? तो आप उस खूबसूरती के मुताबिक सोच लेना. आप उस अपनी खूबसूरती के मुताबिक सोच लेना. कब? हो जाओगी, आगे एक तरह बैठे होगी, ठीक है ना? उस वक्त क्या कर लोगी आप? ये बुक ले लेना, फिर समझ लेना किसके मुताबिक जो चार्म एंड ब्यूटी आपको थी. कब? जब आप जवान थे. और किसके मुताबिक सोच लेना. एंड जो आपका सॉफ्ट लुक था, विच योर आईज वंस हैड. जो सॉफ्ट लुक किनको था? जो आपकी आंखों की खूबसूरती एक बार थी ना. ये एक बार का मतलब क्या है? कब की बात है? जवानी की बात. When she was youth, when she was young, and of their shadows deep. और जो उसकी परछाइयां थी ना, deep shadows का मतलब shadows deep का मतलब क्या है? उसको बोलते हैं ना हम, इसको में बोलते हैं झील जैसी आंखें. What does that mean? That means the eyes, the attractive eyes. ठीक है ना? और जो खूबसूरती आपकी आंखों में थी ना, उसके मुताबिक आप सोच लेना. आप समझ आए ना बात? तो क्या कह रहा है वो? The first quatrain. This is a quatrain. This poem is written in quatrains. है ना? So in the very first quatrain, what does William Butler Yeats say to Maud Goney? शाबाश. तो पहले वो उसको याद दिला रहा है कि जो आपकी यूथ है ना, जो आपकी जवानी है ना, it will come to an end. Your youth will come to an end. ठीक है ना? तो आपके पीछे क्या दौड़ रहा है? बुढ़ापा आपके पीछे दौड़ रहा है. समझाए ना बात? And this time will take you to your old age. ये जो वक्त है ये आपको कहाँ ले जाएगा? Old age में. और old age में हो क्या जाएगा आपको? You will be old, gray, full of sleep. You will lose each and everything. The admirers, the praise, और the charm, the beauty. सब कुछ आप खो जाओगे. ठीक है ना? उस वक्त आप एक काम कर लेना. Take down my book. Take down the book of poems. जो किसने लिखी है? विलियम बटलर यीट्स ने आपके लिए लिखी है. और फिर क्या करना है आपने? शाबाश. फिर सोच लेना. ड्रीम. आप सोच लेना किसके मुताबिक? उस खूबसूरती के मुताबिक जो सॉफ्ट लुक था आपका when you were young. ठीक है ना? और आपकी आंखें ना बहुत ही खूबसूरत थी उस वक्त. बट ये कब की बात है? आप जवान थी. जब आप जवान थी. How many loved your moments of the glad grace? They loved your beauty with love. False or true? How many loved? इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग थे. जो आपकी ग्लैड ग्रेस से प्यार करते थे. किससे प्यार करते थे? इसकी मीनिंग निकालो ग्लैड ग्रेस की. शाबाश. The beauty of you. The beauty of जवानी में खूबसूरती होती है ना, that's a glad grace. तो बहुत सारे इंसान थे, जो प्यार करते थे. किससे? आपकी ग्लैड ग्रेस से. ग्लैड ग्रेस का मतलब क्या है? जो आपकी जवानी में जो आपकी खूबसूरती थी ना, इस खूबसूरती से बहुत सारे लोग थे जो इसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे. एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव. वो आपकी खूबसूरती को बड़ी प्यार से प्यार करते थे. इसका मतलब क्या है? ही स्ट्रेसेस अपॉन द फैक्ट. इसलिए लव इसने बार यहाँ पे यूज किया है ना. इट एक्चुअली ये रिपीटिशन है. क्या है ना? रिपीटिशन. वो इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा है.
वो जोर देता है इस बात को लेके कि बहुत सारे लोग सच में, जब आप जवान थे तो बहुत देर सो मेनी पीपल हु लव्ड यू, वो जो बहुत ज्यादा प्यार करते थे आपकी खूबसूरती से, आपकी ग्लैड ग्रेस से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव, आपकी खूबसूरती वो बड़ी प्यार से प्यार करते थे। कौन? बहुत सारे लोग, बहुत सारे। बट वो उसको इस वक्त रिमाइंड कर रहा है फॉल्स ट्रू। इसका मतलब क्या है? शाबाश। जो उनका प्यार है ना, जो उनका प्यार है, जो बाकी लोग आपकी ब्यूटी से प्यार करते थे, उनका प्यार झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। एक्चुअली विलियम बुटलर रीड्स मार्क ट्वेन को यही बात कह रहा है कि जो बाकी लोग हैं ना, जो बाकी लोग हैं, वो तो प्यार करते थे आपसे, लेकिन सिर्फ किसके साथ? आपके ग्लैड के साथ, आपके दैट मींस जो उनका प्यार था दैट वाज जस्ट फिजिकल, दैट वाज जस्ट फिजिकल। समझ आई ना बात? दैट मींस वो मार्क ट्वेन को एक ही बात समझा रहा है, बता रहा है, हाँ बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते थे, लेकिन वो किसके साथ प्यार करते थे? Only with your glad grades, only with your glad grades, only with your, that means their love was just physical, their love was just physical, ठीक है ना? But only one man loved the pilgrim soul in you, लेकिन इस बात पे अब वो जोर दे रहा है, लेकिन एक ही आदमी था जो प्यार करता था आपकी पिलग्रिम सोल से। किसके साथ? पिलग्रिम सोल के साथ। पिलग्रिम का मतलब क्या है? Who is a pilgrim? Who is a pilgrim? नहीं, अगर हम पिलग्रिम, सिंपल पिलग्रिम की बात करेंगे, Who is a pilgrim? ज़ियारत करने वाला, सिंपली अ पर्सन हु विजिटेड इन अ रिलीजियस प्लेस। कोई भी आदमी, किसी भी मजहब का आदमी अगर अपनी मजहबी जगह पे चला जाएगा ना, तो उस आदमी को क्या कहोगे? पिलग्रिम। और ये जाहिर सी बात है, जब कोई पिलग्रिम करने के लिए जाता है ना, तो उसका दिल से बिल्कुल साफ होता है। Why? Because there is only one thing in his heart, that he is going to do something good in his religion. समझाए ना बात? तो एक ही आदमी प्यार करता था, किसके साथ? आपके पिलग्रिम सोल से। पिलग्रिम सोल simply means pure heart. पिलग्रिम सोल simply means pure heart. एक ही आदमी ऐसा था जो प्यार करता था, किसके साथ? आपके पिलग्रिम सोल से, आपके। और समझाई बात? अगर आप कंपैरेटिवली आप देख लोगे, the love of other people and the love of William Butler Yeats, the love of other people and the love of William Butler Yeats, what is the difference between them? इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? जो बाकी लोग थे ना, जो बाकी लोग थे, they were in physical love with Mark Twain, they loved her glad grace only, but जो विलियम बुटलर रीड्स का लव था, it was spiritual. It was spiritual का मतलब क्या है? It was emotional. It was basically emotions and spirits. समझाई ना बात? So that is the difference between the love of these two. तो समझाई बात? क्या कह रहा है वो? शाबाश। But only one man loved the pilgrim soul in you. What does it mean? शाबाश। There was only one person. There was only one person who loved you with a pure heart. Who loved your pure heart. And who was the person? The person was William Butler Yeats. William Butler Yeats. And फिर क्या कह रहा है? And loved the moments. Sorrows after changing place. और ये जो आदमी है ना, जो कौन सा आदमी? वो loved the pilgrim soul of Mark Twain. जो कौन है? वो मार्क ट्वेन को कह रहा है कि ये जो आदमी है, यानी कि जो मैन है, जो मैं प्यार करता था, जब आपका सारोज की वजह से आपका चेंजिंग फेज बनता था। व्हाट डज इट मीन? द सारोज चेंज ऑन हिज अपीयरेंस। जब इंसान के सामने कोई दुख और दर्द होता है ना, उसकी खूबसूरती कम हो जाती है, उसका फेज जो है ना, फेज, ठीक है ना, वो चेंज हो जाता है। और उन दुख और परेशानियों में ना कोई साथ भी नहीं देता है। बट विलियम बुटलर रीड्स से कह रहा है कि एक आदमी उस वक्त भी आपसे प्यार करता था। किस वक्त? When your face changed because of your sorrows. जब आपका चेहरा चेंज हो जाता है, किसकी वजह से? दुख और तकलीफ की वजह से। That means there was only one person who was always and always with you. Whether you were in joy, ठीक है ना, चाहे आप कंफर्ट में हो, चाहे परेशानियों में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप खूबसूरत हो या ना हो, आपके साथ कोई चीज है या ना है, there was only one person who was always with you, who was always with you. And who was the person? The person was William Butler Yeats. The person was William Butler Yeats. यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको? And bending down beside the glowing bars. और फिर वो उसे याद दिला रहा है। और जब आप बेंड डाउन हो जाओगे, बेंड डाउन का मतलब क्या है? झुक के बैठना। क्या होता है बेंड डाउन? जब आप ऐसे खाता है कि इंसान बुढ़ापे में खुद ही झुक जाता है,
जवानी में अकड़ दिखाता है, और जो अकड़ दिखाता है ना उसे होता क्या है, उसको बेंड करना ही होता है। अब कहने का मतलब समझ रहे हो मेरा? I simply mean to say that you must remain very humble in your life. आपकी जो जिंदगी है ना, इसमें कुछ मोड़ ऐसे आ जाएगा जब आप रोज में पहुंच जाओगे, you will get a brilliant, या बहुत ही खास सक्सेस मिलेगी आपको आगे जाके लाइफ में। समझे ना बात? उस वक्त क्या करना है आपने? एक ही चीज सीखनी है आपने, you must remain very humble, humility, down to earth, ठीक है ना? तो वही से कह रहा है, एक्चुअली इसकी मीनिंग वही निकलती है, ठीक है ना? एंड बेंडिंग डाउन, और आप जब क्या कैसे बैठ जाओगी? बेंड डाउन यानी कि जब आप ऐसे झुक के बैठोगी बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। ग्लोइंग बार्स का मतलब क्या है? ग्लो का मतलब है चमकना। ग्लोइंग बार्स हियर मींस फ्लेम्स, जो आग से मशाल निकलती है ना, दैट्स अ ग्लोइंग बार, दैट्स अ, यानी कि आग जलती है, आप उसी के साइड में किस तरह से बैठी हुई होगी? झुक के बैठी हुई होगी। वो खुद झुकी नहीं होगी, दैट विल बी, वो तो उसके बॉडी का, वो उसकी बॉडी बिल्कुल चेंज हुई होगी। Because of what? Because of what? Because of old age. Because of वो जब आप बेंड करके बैठी हुई होगी किसके सामने, किसके बिसाइड, किसके एक तरफ? ग्लोइंग बार्स के एक तरफ। मर्मर एंड लिटिल सैडली हाउ आवर लव फ्लैट, और उस वक्त आप मर्मर कर लेना। मर्मर मीन्स स्पीक स्लोली। मर्मर का मतलब क्या है? हालांकि बुढ़ापे में सिर्फ मर्मर ही किया जा सकता है ना, वो आवाज भी उतनी तेज नहीं होती है। तो उस वक्त आप थोड़ा स्पीक सॉफ्टली, अब धीरे धीरे कह देना कि जो हमारा प्यार था किस किस के बीच, बिटवीन विलियम बुटलर यीट्स एंड मार्क ट्वेन। आगे वाज अ वन साइडेड लव, इट वाज अ, ही इज स्पीकिंग अबाउट द वन साइडेड लव, ठीक है ना? तो उस वक्त आप सोच लेना, उस वक्त आप धीरे धीरे कह देना कि जो हमारे बीच प्यार था, कि जो हमारे बीच हार्ट फ्लैट, ये किस तरह से हम दोनों के बीच भाग गया, ये हम दोनों के बीच रहा ही नहीं, ये हम दोनों के बीच रहा ही नहीं। इट फ्लैट, फ्लैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ फ्ली, फ्लैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ फ्ली का मतलब क्या है? एस्केप, भाग जाना। हम दोनों के बीच प्यार था, यह हम दोनों के बीच नहीं रहा, और ये क्या, ये हम दोनों के बीच भाग गया। कहां चला गया? दैट मीन्स इट रिमेन्ड नो मोर बिटवीन अस, ये हमारे बीच रहा ही नहीं, भाग गया हमसे, ठीक है ना? एंड टेस्टेड अपॉन ओवर द माउंटेन्स, और ये जो हमारे बीच प्यार था ना, इसने बहुत तेज दौड़ लगाई। किन के ऊपर से? माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों के ऊपर से जो हमारा प्यार था ना, हम दोनों के बीच रहा ही नहीं, ठीक है ना? It doesn't exist between us, it fled away from us, ये हम दोनों से भाग गया, और इसने बहुत तेजी से, कहां से भाग गया ये? Over the mountains, पहाड़ों के ऊपर से ये चला गया, and hid his face among the crowd of stars। और जो ये प्यार था ना, कहां से भाग गया ये? हमारे कुछ रहा ही नहीं, हमसे भाग गया, और कहां चला गया? पहाड़ों के ऊपर से चला गया, and hid his face, और उसने अपना चेहरा छुपा लिया, और इसने अपना चेहरा छुपा लिया कहां पे? Among the crowd of stars, किन में? स्टार्स के क्राउड में ये प्यार हमारा छुप गया। What does it mean? हाँ? मर गया। Yes, exactly. That is what the William Butler Yeats wants to tell us. It is a Christian mythology. It is a Christian mythology, and also it is a Hindu mythology also. That when a person dies, when the person vanishes from the earth, उसकी जगह पे क्या होता है? A star twinkles in the sky in place of him, so as to show his presence, as to show his। तो इसी तरह इंसान पे, जमीन पे जो इंसान मर जाता है ना, तो मिथोलॉजी के मुताबिक उस इंसान के साथ होता क्या है? उसके बदले में जब वो खत्म हो जाता है ना, when he vanishes away from the earth, उसकी जगह पे एक स्टार निकलता है, कहां पे? स्काई पे। So according to that mythology, William Butler Yeats uses that mythology that ये जो उन दोनों के बीच प्यार था ना, it doesn't exist, it doesn't remain between us, यानी कि मर ही गया हमारे बीच, और कहां चला गया? Spaced over the mountains and hid his face among the crowd of stars, So we can say that at the end of the poem, William Butler Yeats is seen in a gloomy mood. किस में दिख रहा है वो बहुत परेशान दिख रहा है। अब समझना, there is a sense of, वहां पे उसके अंदर क्या महसूस हो रहा है? There is a sense of loss, ठीक है ना? अगर हम दोनों की बात करेंगे, विलियम बुटलर यीट्स एंड मार्क ट्वेन, इन दोनों में एक सेंस ऑफ लॉस है, एक सेंस ऑफ विलियम बुटलर यीट्स, व्हाट विलियम बुटलर यीट्स हैज लॉस्ट, he has lost the love which he felt towards Margoni, and what does Margoni loses? उसे वो क्या खो रही है? अपनी ब्यूटी है ना, अपना चार्म, अपने एडमायरर्स,
बाकी अपना प्राउड, वो सब कुछ खत्म हो रहा है, वो सब कुछ। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट इंसान के पास नेचुरली जो भी चीज होती है ना, वो उसे वापस करनी पड़ती है। यू हैव अ ब्यूटी, यू हैव अ चार्म, यू हैव अ इंटेलिजेंस, ठीक है ना। सो द पैसेज ऑफ टाइम दीज थिंग्स टैपर डाउन, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? टैपर डाउन का मतलब क्या है? एक गाँव हो जाती है। गाँव जानते हो आप, कम कम फीकी पड़ जाती है, कम कम हो जाती है। इवेंचुअली दे कम टू एन एंड, इवेंचुअली दे कम टू एन एंड। समझे ना बात? एक्चुअली एक नेचर का लॉ है, इट इज अ नेचर ऑफ लॉ, इट इज अ नेचर ऑफ, समझिए ना बात। नेचर को अपना मकसद पूरा करना पड़ता है। नेचर हैज टू परस्यू इट्स एंड्स। जो कुदरत है ना, कुदरत उसे अपना मकसद पूरा करना होता है, उसे अपना मकसद। एंड देन जो मकसद है ना नेचर का, वो क्या है? वो ये है कि उसे जो भी चीजें दुनिया में लाई है ना, ये चीजें उसने वापस छीननी है, वो चीजें उसने वापस छीननी है। आप समझ गए ना? अब देख लेना, दुनिया में जो भी चीजें आती है ना, वो वापस चली जाती है। इट इज ये क्या है? इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। एंड सेम थिंग्स आर डिस्कस्ड, आर मेंशन्ड इन दिस पोएम, सेम थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस पोएम। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन में?